Very good evening to all of you. So in the previous class we studied about the crystalline solid and amorphous solid, and another solid I have told you that quasi-crystalline. So in this class we will study about the what is the difference between quasi-crystalline and crystalline solid. Then we will also discuss about the how many number of crystalline solid can be divided. So let us take an example that of crystalline solid and here quasi crystal, here quasi crystal. So first we will know that the what is the difference between crystalline solid and quasi crystal. So the basic definition of the crystalline solid is that particles are arranged in ordered as well as periodic, but in case of quasi crystal, particles are arranged in ordered but aperiodic. So this is the basic difference between the quasi crystal and crystalline solid. In case of the crystalline solid, particles are arranged in order. ये ऑर्डर में रहते हैं, उसके साथ साथ पीरियाडिक इनका अरेंजमेंट होता है, लेकिन इस केस में ऑर्डर्ड तो होते हैं, वेल ऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन पीरियाडिक नहीं होता, दैट इज ए पीरियाडिक. और ए पीरियाडिसिटी या पीरियाडिसिटी की वजह से क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमको ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑब्टेन्ड होती है. ट्रांसलेशनल सिमेट्री इसमें आपको ट्रांसलेशनल सिमेट्री मिलेगी. बट इन केस ऑफ द क्वासी क्रिस्टल ट्रांसलेशनल सिमेट्री are absent, and it is due to the aperiodic arrangement of the particle. So that is the most important point. The crystalline solid are naturally present but these are naturally absent. And the third last point is that in this case crystalline solid C2 axis of rotation, C3 axis of rotation, C4 axis of rotation and higher axis of rotation, that is C6 axis of rotation are obtained. But in case of the quasi crystal only C5 axis of rotation are obtained. Only. So these are the basic point of the crystalline solid and quasi crystal. So in another hand we will discuss about the on the basis of force of attraction, the crystalline solid can be divided into 4 types. So let us see. So on the basis of arrangement of the particle, the solid can be divided into 2 types, that is crystalline solid and amorphous solid. पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इस आधार पे हमने सॉलिड को 2 भागों में बांटा था.
एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था, दूसरा आपका एमरफस सॉलिड। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में लगने वाले बल के आधार पे अगर हम पार्टिकल को बांटेंगे तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके जो होते हैं वो आपके अलग अलग आधार पे होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction, on the basis of force of attraction, the crystalline solid can be divided into four types. Number one, that is molecular solid. Second one is that ionic solid. Third is that metallic solid, and last one is that कोवैलेंट सॉलिड। तो कणों के बीच में लगने वाले बल के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फिर से 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। एंड these molecular solid can also be divided into 3 types. That is, first one is that polar solid, second one is a non-polar solid, and third, last one is that hydrogen bonded. So these are the type of the crystalline solid on the basis of force of attraction. So we will discuss about each one of them. That is molecular solid, and in molecular solid, that is polar solid, non-polar solid, hydrogen bonded, then ionic solid, and then metallic solid, and then covalent solid. So we will discuss about the all these of them and one by one. That then let us start from initial. So first one is a molecular solid. So this is a solid. Which is obtained by the molecules. So can be divided into 3 types. Molecule can be divided into 3 types. That is polar solid, and polar solid are those in which there is a development of the pole, that is positive and negative. So the example of the polar solid is that is HCl, SO2, NH3, and नॉन-पोलर सॉलिड वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस एटम के बीच में नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे पोल डेवलप नहीं होंगे, प्लस माइनस डेवलप नहीं होगा, सेम आवेश होंगे। जैसे एग्जांपल आपका I2 होगा, CO2 होगा, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, एंड लास्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन लगा हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, इन तीनों में से अगर इंटरेक्शन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं। तो एग्जांपल आपका आइस हो जाता है, जिसे या तो हम लोग कैसे ले लें, H2O ले लें। ठीक, तो यहाँ पे पोल डेवलप होने की वजह से क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए HCl है, एक आपका HCl ये है, तो यहाँ पे इसके ऊपर माइनस होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस होगा पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल माइनस होगा, यहाँ पार्शियल प्लस होगा।
तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होगा प्लस माइनस की वजह से, तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, dipole dipole interaction, and this interaction is very weak, therefore the melting point of these molecules also very weak, very less, melting point of these molecules are very less, और इनमें आयंस फ्री नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं मिलती है। सिमिलरली SO2 मॉलिक्यूल में, उसी तरह NH3 मॉलिक्यूल में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये बहुत ही वेरी सॉफ्ट होते हैं आपके, लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉफ्ट होंगे, कैसे होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट सॉलिड कहलाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉलिड देयर इज ए लंडन फोर्स, देयर इज ए लंडन or dispersion, very weak dispersion force occur between the molecules, therefore these solids are also very soft, and no electrical conductivity obtained, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होगा, इसका भी लेस मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सॉफ्ट होंगे, ये भी सॉफ्ट होंगे, लेकिन ये सॉलिड ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं रेदर देन द पोलर सॉलिड, ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कारण क्या है कि इसके बीच जो लगने वाला फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स या वीक लंडन फोर्स कह सकते हैं। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा आता है और सॉफ्टनेस थोड़ा सा कम होती है, ज़्यादा हार्ड होता है रेदर देन दिस नॉन पोलर। बट लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दोनों में हमको नहीं मिलती, क्योंकि आयन या इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से फ्री नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल देयर इज ए, सपोज दैट ये जो बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों फोर्स से मजबूत होता है, इसलिए हमको ये थोड़ा सा क्या मिलते हैं, हार्ड मिलते हैं, उनकी बजाय हार्ड होते हैं। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एब्सेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो आयंस फ्री नहीं होते हैं, ये भी एब्सेंट होते हैं। और इसमें आपका जो फोर्स लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर हो गया, डाइपोल डाइपोल लगेगा, इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्स कह सकते हैं। ये इस वाले से ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इससे भी हार्ड ये वाला होता है। इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट में इसका ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो उन दोनों की बजाय इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, एंड examples also are here, and the force of interaction between them, and electrical conductivity and melting point. So let us take another example of solid, that is ionic solid. So in case of ionic solid, the solid is, दूसरा क्या होगा आपका, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड हम उनको कहते हैं जो सॉलिड आयन के द्वारा मिलके बनते हैं। तो 3 डायमेंशनल सारे आयन का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, या तो कटायन होंगे या तो एनायन होंगे। एग्जाम्पल आपका जैसे NaCl आप ले लें, तो इसमें क्या होता है Na+ एंड Cl-। तो एक 3 डायमेंशन एक जाल बनी होती है, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स है वो अरेंज होते हैं। तो वो पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि फ्री नहीं हो पाते, घूम नहीं पाते। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें, एक बार यहाँ पे शार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं NaCl को।
अगर अदरवाइज NaCl के बारे में पूरा आपको फिर से बताया जाएगा। तो NaCl का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर उसको मैं सिर्फ बताता हूँ कैसे होता है, फिर आप बाद में बताया जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये आपका NaCl का मान लीजिए स्ट्रक्चर है। ये NaCl का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका जो सोडियम आयन प्रेजेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है, क्लोराइड आयन कॉर्नर ऑफ फेस पे होता है। मान लीजिए मैं ऐसे सर्कल बना देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट दैट क्लोराइड आयन। तो ये आपके क्लोराइड आयन कहाँ होंगे, सभी कॉर्नर पे होते हैं, आपके सभी कॉर्नर पे होंगे, और उसके अलावा ये फेस पे पाए जाते हैं। और जो सोडियम आयन आपका होगा वो आपका पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहाँ कहाँ होती हैं सभी वो लिख के मैं बता देता हूँ आपको। Na+ आपका कहाँ पाया जाता है, एक तो बॉडी के सेंटर पर, दूसरा पाया जाएगा सभी भुजाओं के बीच में एज सेंटर, और क्लोराइड आयन जो आपका पाया जाता है वो कॉर्नर पे पाया जाएगा, उसके साथ साथ फेस पे पाया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ एक आइडिया ये बताना चाह रहा था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं दैट इज मेड अप बाय द आयंस एंड दैट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो Na+ और Cl- देखिए कैसे 3 डायमेंशनली अरेंज हो गए और एक दूसरे के साथ फोर्स में, जैसे एक प्लस माइनस है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल के बीच में, जिस वजह से अरेंज होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड होंगे तो इनमें फिक्स होते हैं इसलिए नहीं मिलता, लेकिन अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए, ये पिघला दिया जाए अगर, तो इन मेल्ट सिचुएशन, अगर ये मेल्ट किए जा गए हों, मेल्ट होंगे तो आयंस आर फ्री। इन मेल्ट केस आयंस वुड फ्री, Na+Cl- फ्री हो जाते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन, हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल जाती है। मतलब कहने का कि आप जब सॉलिड स्टेट होगा तब ये नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में चले जाएं या मेल्ट फॉर्म में चले जाएं तो हम लोग उनमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है। उसका कारण क्या होता है कि इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पॉइंट, बट इन केस ऑफ द मेल्ट सिचुएशन दैट इज लिक्विड केस द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव around their surrounding, that's why the electrical conductivity obtained in this solid. So द मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपको हाई मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको मैंने बता ही दिया है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, उनके बीच में बल लगता है जो मजबूत होता है, इसलिए ये सॉलिड आपके जो होते हैं वो इनको कहा जाता है वेरी हार्ड, ये आपके हार्ड होते हैं रेदर देन द मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो लेट अस टेक एन अनदर सॉलिड एग्जांपल।
तो अनदर सॉलिड आपका है तीसरा, दैट इज metallic solid. तो metallic solid are generally formed by the cluster of positive charge surrounded by the electron, and that is called as the पॉजिटिवली चार्ज सराउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समुद्र, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। तो इसमें क्या होता है कि पूरे मेटल के अंदर जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं। तो ये सभी आयन आपके पूरे क्रिस्टल मेटल में क्या होते हैं, फ्री हो मूव करने के लिए, इसलिए मेटल में आपको इलेक्ट्रिकल मेटल आपके हार्ड हो जाते हैं। इनके बीच का जो बल लगता है उसे कहते हैं मेटालिक फोर्स बिटवीन positive and C of electron, and this positive is also called as kernel. That's why they are very hard. इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन्ड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको ऑब्टेन्ड होगी इन केस ऑफ द मेटालिक सॉलिड, और ये भी वेरी हार्ड होते हैं। एंड लास्ट वन इज दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड आर फॉर्म बाय द एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो आपका फोर्स होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between atoms, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। सो इसके जो एग्जांपल होते हैं जनरली आपके पास, जैसे एग्जांपल लें हम लोग, बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट हैं वो लिए जाते हैं, ग्रेफाइट आपका हो गया एंड डायमंड हो गया। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द टू एटम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग नेचर ऑफ दैट सॉलिड। तो हम लोग थोड़ा कोवैलेंट सॉलिड में जो आपका ग्रेफाइट है एंड डायमंड उसको डिस्कस करेंगे। तो डायमंड के केस में क्या होता है, जैसे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। पहले ये समझ लीजिए, चार इसमें टेट्राहेड्रल आपके कैसे बनते हैं, चार कार्बन एटम आपके एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन फर्दर ये आपके डिटेल ये बढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो आपके कार्बन हैं वो आपके एक दूसरे से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, उनकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं। जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है कार्बन का, 3 डायमेंशन कार्बन का अरेंजमेंट बढ़ता चला जाता है। ढेर सारे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में जुड़े होते हैं। इसी इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर कहा जाता है। दिस इज द डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर। और ये कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। तो एक कार्बन 4 कार्बन से 1 2 3 4 से जुड़ा, फिर एक कार्बन फिर 4 से जुड़ा, तो ऐसे एक जाल बन जाती है। और इसी 3 डायमेंशन की वजह से ये आपके बहुत ही हार्ड होते हैं। 3 डायमेंशन की वजह से आपका जो ये होता है हार्ड होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आप 154 पिकोमीटर के बराबर होती है, 154 पिकोमीटर के बराबर होती है। नियरली जैसे 154 पिकोमीटर कार्बन डिस्टेंस होगी। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, ग्रेफाइट एक लेयर होती है। ग्रेफाइट बनता कैसे, तो इट इज अ फ्यूज्ड लेयर ऑफ बेंजीन रिंग, कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी लेयर्स। तो मान लीजिए आपका ये आपका एक लेयर है, तो इसमें ये लेयर ऐसे, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इसी तरह की एक लेयर नीचे की तरफ रहेगी, ठीक है, दोनों लेयर नीचे रहेंगे ऐसे। दोनों लेयर के बीच में इन दोनों के जुड़ने का जो कारण होता है वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बेंजीन का एक फ्यूज्ड होता है, जैसे एक बेंजीन यहाँ पे जुड़ गई दूसरे से, ये जुड़ गई यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड पॉइंट कहा जाता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है यहाँ पे, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो इसी घूमने की वजह से हमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन कार्बन में सारे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4
तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसलिए हम लोग को इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एब्सेंट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एब्सेंट, यह नहीं मिलती। लेकिन इसमें एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होता है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, पूरे रिंग में घूमता रहता है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन सिमिलरली अगर हम देखें तो जो ग्रेफाइट होता है आपका वो लेयर है, वो क्या है, फ्यूज्ड बेंजीन कई जुड़े होंगे, उनकी क्या है, ये लेयर है। तो एक लेयर आपके ऊपर होगी, एक लेयर नीचे होगी, तो इनके बीच में जो यहाँ पे ये डिस्टेंस होती है वो 354 पिकोमीटर लगभग इससे बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इससे एक ये सिद्ध हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच किसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्डिंग है नहीं। लेकिन ये जो एक दूसरे से जुड़ी होती है उनका कारण होता है वीक वांडर वाल फोर्स, वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो बहुत वीक होता है। तो इसलिए आप देखिए ग्रेफाइट आसानी से टूट जाता है, पेंसिल में जो लगी होती है वो आसानी से टूट जाती है और वो स्लाइडिंग कर सकती है। तो स्लाइडिंग की वजह से इसमें क्या होता है, इसे ग्रीस की तरह भी यूज किया जाता है, ग्रीस की तरह यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। तो इसके दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है वो कई बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है, फ्यूज मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कार्बन बेंजीन रिंग का किसी भी कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 तो बॉन्ड में बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहता है घूमने के लिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें ऑब्टेन हो जाती है। और जो लेयर है दूसरी लेयर से कैसे जुड़ी होती है, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब वीक वांडरवाल है, इस वजह से ये आसानी से क्या कर जाती है, स्लाइडिंग ओवर देयर, एक दूसरे स्लाइड कर सकती है, टूट सकती है आसानी से। उनके बीच का जो डिस्टेंस होती है 354 पिकोमीटर, अप्रॉक्स 354 पिकोमीटर लगभग होती है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बन कार्बन के बीच में किसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो ये आपका हुआ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट यहाँ पे जो आप दिखाएंगे वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि यहाँ 4 लोग से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 लोगों से जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एब्सेंट होगी आपकी। ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्टेन होती है। उसका कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कभी भी इस जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वो होगा वो अपनी ही पूरे रिंग में नाचेगा, दूसरी वाली नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो ये पढ़ेंगे कि आपके क्रिस्टल बनते कैसे हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको जो 2 भागों में बताया कि एक basically solid can be divided into crystalline solid and amorphous solid, and another one solid I have told you that quasi-crystal, but quasi-crystal are naturally absent and crystalline and amorphous solids are naturally present. And today we will discuss about the what is the difference between the crystalline solid and quasi-crystal, and on the other hand we here also discuss that what is that how can be divided the crystalline solid on the basis of force of attraction. So basically that we divided into four type of molecule, that is a molecular solid, ionic solid, metallic solid, and last one is the covalent solid, and all are the example। ये भी आपके सभी के एग्जाम्पल हो गए, और उनके साथ साथ उनके बीच का कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।